स्कूल के कैडेट से खिताब करते हुए पहलगाम के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको वाज़े किया था। और आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दिया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 को वज़ीर-ए-आज़म काकूल गए और उन्होंने पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से ना सिर्फ भारत को भरपूर जवाब दिया बल्कि एक तारीखी खिताब था उनका काकूल के अंदर। उस खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े तौर पर यह कहा कि पहलगाम जैसे वाक़यात की आड़ में जो एक ब्लेम गेम की जाती है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस सिलसिले को अब रुकना होगा और पहलगाम को एक ट्रेजेडी कहा। India's systemic persecution of its minorities, particularly Muslims and Sikhs, has become more pervasive over the years. It must accept full responsibility for its complete failure to protect the lives, dignity, and security of these oppressed communities. Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestation as the world's frontline state, that is Pakistan. Against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis? Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? I think, ladies and gentlemen, there cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland, Pakistan. And let this message be loud and clear for all and sundry. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness.
देखिए, पहलगाम पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो उसके विक्टिम्स थे उनके साथ इजहार हमदर्दी किया, बल्कि बड़ी सतह पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। इसके बरक्स आपने देखा कि भारत कभी भी दहशतगर्दी के वाकयात की ना मजम्मत करता है, ना उस पर इजहार अफसोस करता है, ना तशवीश का इजहार करता है, क्योंकि एक वाज़ेह फ़र्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। ये दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले पूरी दुनिया के सामने इसका जो एक फ़र्क है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ चुका है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कुर्बानियां दी हैं, बल्कि कुर्बानियां देता जा रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। दूसरी तरफ भारत जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और आपने देखा कि वो फितनल हिंदुस्तान हो थ्रू BLA या वो फितनल ख्वारिज हो TTP हो, तो इनके तमाम के ताने बाने भारत से जाकर मिलते हैं और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो पाकिस्तान जो विक्टिम रहा है टेररिज्म का, जिसने कुर्बानियां दी हैं, और वज़ीर आज़म ने कहा कि हम 600 अरब डॉलर का एक नुकसान भी बर्दाश्त कर चुके हैं। 90,000 से ऊपर हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के अफसर जवान, जिसमें पुलिस, जिसमें हमारे सिविलियंस, जिसके अंदर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स और अहलकार सब शामिल हैं। तो पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है और दहशतगर्दियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान अपनी तमाम तवानाइयाँ बरूएकार लाता रहा है और ला रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बड़ी कामयाबी हो रही है। तो जब पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, तो प्राइम मिनिस्टर जब वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ काकूल गए और आज ही के दिन 1 साल पहले उन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब दिया, तो उन्होंने पहलगाम को एक ट्रेजेडी कहा कि जो रीसेंट ट्रेजेडी है पहलगाम की, इसमें जो एक ब्लेम गेम की ना ख़त्म होने वाली कहानी चल रही है, इसको रुकना होगा हर हाल में। वज़ीर आज़म ने इसका एक हल भी दिया और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा हल था जिसने सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत तक़वियत दी। जब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हम पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो भारत टोटली बैकफुट पर चला गया और बैनुल अक़वामी सतह पर वो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो दीगर ममालिक हों, उन्होंने इस पर पाकिस्तान की हिमायत की और भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई, क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने ये कहा कि हम एक गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो इसके पीछे वो एतमाद था, वो कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं, और भारत दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और आप देखिए कि भारत का उस गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब ना आया और ना ही आना था, क्योंकि उनके हाथ रंगे हुए थे पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उनके खून में। तो जो लोग पहलगाम के वाक़े का निशाना बने उस फॉल फ्लैग ऑपरेशन का, भारत की अपनी सिविल सोसाइटी ने, अपने मीडिया ने, अपने सियासतदानों ने भारत की सरकार को उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। वरना अगर इनके हाथ साफ होते तो ये 1 मिनट लगाते और कहते कि जिसकी तहकीकात करवा ले, मगर इनको पता था कि इनके हाथ रंगे हुए हैं इस साजिश में, तो इसलिए इन्होंने तहकीकात की पेशकश के हवाले से कोई जवाब ना दिया। और ये एक टर्निंग पॉइंट था पहलगाम के वाक़े के बाद, कि जिसके बाद पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ठीक बात कर रहा है, और जब पाकिस्तान खुद सामने आकर यह कह रहा है कि तहकीकात कराओ, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्विस हो। तो मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ एक तारीखी खिताब था, बल्कि इसने
जिस तरह कहते हैं कि टर्न द टेबल्स, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसकी तारीफ की कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक दुरुस्त मौक़िफ़ है। इस खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने जहां पहलगाम के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, उसको भी मजीद क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा। आबी दहशतगर्दी जिसका भारत हमेशा सहारा लेता है और हमेशा पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, वज़ीर आज़म ने उस इशू को भी एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो आबी दहशतगर्दी करे और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे और IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करे। और आपने देखा कि जो उसके कानूनी पहलू थे उसमें भी भारत को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया या उसमें किसी किस्म का को रखना डाला गया या पाकिस्तान के पानी को किसी भी हवाले से कोई रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। ये तारीखी खिताब जो था काकूल का, मैं समझता हूं कि ये तारीख में एक अहम मकाम रखता है और आज इसको 1 साल हुआ है तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आगे अल्लाह ताला ने रास्ते खोले और पाकिस्तान की इज्जत में, पाकिस्तान के वकार में बहुत इजाफा हुआ। पाकिस्तान की जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की जो इदारों की एक मजबूती है, वो भी इस दौरान खुलकर सामने आई और वज़ीर आज़म ने वही उसी एतमाद के साथ ये कहा कि हमारी बहादुर अफवाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में अफवाज पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। तो ये पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ और वो एक अज़म है, एक रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और हम अपना दिफा करना भरपूर जानते हैं और अल्लाह ताला के फजल से मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने अपना दिफा करके दिखाया। और वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी काकूल की, उसमें भी उन्होंने इस बात का, इस अज़म का यादा किया कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम डट के खड़े हैं और भरपूर सलाहियत रखते हैं कि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब उन्हें देना आता है। और वज़ीर आज़म ने इस तकरीर के दौरान यह भी कहा कि पाकिस्तानी कौम कभी भी अपने इज्जत और वकार पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और अल्लाह ताला ने उन अल्फाज की लाज रखी और पाकिस्तान की इज्जत और वकार में कई गुना इजाफा हुआ। तो जो एक तरफ भारत की नैरेटिव ड्रिवन ब्लेम गेम थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सच पर मबनी हमेशा से चले आने वाला स्टांस था कि जहां दहशतगर्दी का तो हम मुकाबला कर ही रहे हैं, हम दहशतगर्दों के हवाले से एक वाज़े पॉलिसी रखते हैं, वहीं पर भारत ने कभी दहशतगर्दी के हवाले से कोई वाज़े अपनी पोजीशन नहीं ली। पाकिस्तान के हाथ में सच्चाई का अलम था और सच्चाई हमेशा जीत कर रहती है। द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो आपने देखा कि जब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि आपके पास झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात के अलावा कुछ नहीं है, तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच एक रोशन सूरज की तरह उभरा और भारत उस दिन से लेकर आज तक तारीकियों में डूब चुका है। और वो सफारती महाज हो, वो बयानिए की जंग हो और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, तमाम फ्रंट्स पर भारत को शिकस्ते फाश हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो वजीर आजम का आज से 1 साल पहले पीएमए काकूल का तारीखी खिताब था,
उसने जहां पाकिस्तान की हर पहलू के हवाले से पॉलिसी जो चली आ रही थी, कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, उसको मजीद वाज़ेह कर दिया, बल्कि भारत के झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जामात के जवाब में जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली और वजीर आजम ने यह कहा कि आपके इल्जामात जो हैं पूरी दुनिया देख चुकी है कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है, और अगर सच्चे हो तो आओ इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, तो उसके बाद भारत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है, और यही वजह है कि उसके बाद पाकिस्तान को सफारती महाज पर बैनुल अक़वामी सतह पर अल्लाह ताला ने जो इज्जत अता फरमाई है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पूरी कौम को इस पर फख्र है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो मुल्क से बाहर रहते हैं मगर पाकिस्तान के लिए एक जज्बा रखते हैं, एक मोहब्बत रखते हैं, उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इज्जत और कदर की निगाह से देखती है। तो मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम के खिताब ने जो बुनियाद पहलगाम के वाक़े के बाद रखी और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज्जत में कई गुना इजाफा हुआ। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अफवाज ने ना सिर्फ जो एक पोजीशन ली